Okay, so coming to the first question, in the neural circuitry shown, A and B are the two motor neurons in the spinal cord, and C is the inhibitory interneurons. Okay, C, you can see this one is the inhibitory interneuron, and this is one, this is A, and this is B. These are the two motor neurons in the spinal cord. Okay, so what is the question? So I'll dictate the question so that will be focused on this diagram. So first question is, which phenomena does the diagram depict? Okay, so what is this phenomena? So if you have studied the CNS, so you might have you might be well aware of this question, and you may recall. So this is recurrent inhibition or feedback, negative feedback inhibition. This is, you can note down, this is recurrent inhibition or negative feedback inhibition. What is that? What are the types of inhibition? First, you should know what are the types of inhibition. So we have four types of inhibition. First is the postsynaptic inhibition, then the presynaptic inhibition, then feedback inhibition, and lastly feed forward inhibition. So this is recurrent inhibition or negative feedback inhibition. So what is that? See, the feedback inhibition, also known as Renshaw cell inhibition. This word is very important. You already have studied. So just mark this point. This word is very important. Renshaw cell inhibition. This is known to occur in the spinal alpha motor neurons. You can see these are the two A and B. These are the two alpha motor neurons through an inhibitory interneuron. What is that called? Inhibitory interneuron. This is inhibitory interneuron. What is that called? Renshaw cell. Okay, so what happened? This is also called as recurrent inhibition. Okay, so what happens in this? A neuron is inhibited by its own output. Okay, that's why it is called negative feedback, because the neuron is inhibited by its own output. In this way, the firing of an action potential by the motor neuron of the spinal cord is followed by the phase of hyperpolarization. What happens in the phase of hyperpolarization? There is inhibition. So there is inhibition of not only the same motor neuron, but also the other neurons in the neighborhood. So if it's going to inhibit this A motor neurons, then it is also going to inhibit the the neighboring, that is the B motor neuron. So the feedback inhibition is thus basically the postsynaptic inhibition, but it is, why it is classified separately? Because the inhibitor, what is the inhibitor? The Renshaw cells. So the Renshaw cells are activated by the collateral of the ventral horn cells rather than the afferent neurons. So this will be activated by the collateral circulation, right? So this type of feedback inhibition is also seen in the other parts of the CNS. So what is the benefit of this? Okay, so it serves to limit the excitability of motor neurons. मान लो हमें कहीं पे बहुत ज्यादा इनहिबिशन नहीं, हमें बहुत कहीं पे इनहिबिशन मान लो इनहिबिट हो गया, मतलब जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है उसमें कुछ ब्लॉकेज हो गई, मान लो कोई पॉइजनिंग है किसी चीज में, वो ब्लॉक हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे कि वहां पे रिपीटेड जो होगी फायरिंग होगी, ठीक है, तो लोगों को सीजर्स आ जाते हैं, इसलिए इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. So I think you are clear, but let me repeat again. I'm not sure if you get it or not, so I'm repeating again. So this is the feedback inhibition or the recurrent inhibition, or it's also called as negative feedback inhibition. This is known to occur in the spinal alpha neurons through an inhibitory interneuron. What is inhibitory interneuron? Inhibitory interneuron is Renshaw cell. Okay. So in this inhibition, what happens? The neuron inhibits those very neurons that जो उनको excite करता है उन्हीं को inhibit कर देते हैं, ठीक है. In other words, the neuron is inhibited by its own outputs. That's why it is called negative feedback inhibition. So in this way, what happens? The firing of the action potential by the motor neuron of the spinal cord is followed by the phase of hyperpolarization. What is hyperpolarization? The inhibition of not only the same motor neuron, but also
but also many others in the neighbor. So this negative feedback inhibition is basically a postsynaptic inhibition, but why it is classified separately? Because the inhibitor, who is the inhibitor? The Renshaw cells are activated by the collateral of the ventral horn cells rather than the efferent neuron से तो हो नहीं रहा है क्योंकि वो inhibition हो रहा है तो वो collateral से activate होता है. So this type of inhibition, this serves to limit the excitability of the motor neurons, right? Okay, so what is the name given to the inhibitory neuron? I already told you many times. The inhibitory motor interneuron, also known as Renshaw cell. You can say inhibitory motor interneuron is known as Renshaw cell. Okay. Now the third question is, what is the physiological significance of this phenomena? So what is the physiological significance? So the Renshaw cell is the inhibitor motor interneuron cell. So the Renshaw cell is one of the fundamental aspect of motor neuron. So for the precise voluntary activity, what two things are required? Firstly, the desired lower motor neurons. You can say this B. Okay, the desired lower motor neuron should be stimulated precisely, and not should be overstimulated. ठीक है. So the negative feedback inhibition on B helps in achieving this. अगर यहाँ पे ये क्या होता है कि over stimulate नहीं होना चाहिए, इसलिए जो negative feedback inhibition होता है वो इसको जितना stimulate होता है उतना stimulate करने में help करता है. Secondly, for other lower motor neurons, for example ये A है, ठीक है, which are not involved in the desired voluntary activity should not be. अगर हमें इससे A से कोई voluntary activity नहीं लेनी है तो ये stimulate नहीं होना चाहिए, right? तो क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि नेबरिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको भी इनिबिट करता है. तो क्या होता है, जो इनिबिशन ऑफ द सराउंडिंग लोअर मोटर न्यूरॉन्स हेल्प टू अचीव दिस. इसमें क्या होता है, सिर्फ अपने ही मोटर न्यूरॉन को इनिबिट नहीं करता है, नेबरिंग मोटर न्यूरॉन को भी इनिबिट करता है. तो अगर मान लो हमें ए से एक्टिविटी नहीं चाहिए तो क्या होता है, ये अगर नेबरिंग इंटर न्यूरॉन अगर इसको इनिबिट करेगा तो फिर ये एक्टिवेट स्टिमुलेट नहीं होगा. ठीक है. सो ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है. तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, ये आपको तो याद रखना है, बट फॉर एग्जाम्पल in the CNS, the synaptic inhibition offers the type of resistant over neurons and muscle to act properly and appropriately. So this type of inhibition, what it does, it helps to select the exact number of impulses and to omit or block the other ones. समझ में आया? इसमें क्या होता है कि जितने impulse चाहिए हमें उतने exact number of impulse को select करता है और जो नहीं चाहिए या जो excess चाहिए उसको inhibit करता है. Okay, so when the inhibitory system at the synaptic level is destroyed, for example, अगर हमारा इनिबिटरी सिस्टम मान लो कि सी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, फॉर एग्जांपल अगर पॉइजनिंग होती है, फॉर एग्जांपल स्ट्रैक्निन पॉइजनिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस और कन्वल्सिव एक्टिविटी, अगर थोड़ा सा भी स्टिमुलेशन होता है तो क्योंकि वो इनिबिट नहीं कर पाता है तो उससे कंटिन्यूस या कन्वल्सिव एक्टिविटी होती है. ठीक है. अदर जैसे नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जो आप पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल पार्किंसोनिज्म, जो कि आप लोग को काफी पता होगा इसके बारे में. तो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है कि द इनिबिटरी सिस्टम इज इम्पेयर्ड, जो ये सी है, इनिबिटरी सिस्टम ये इम्पेयर हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, रिजिडिटी, मतलब ओवर स्टिमुलेशन होता है जिससे रिजिडिटी होती है. तो ऑल्दो इट्स नॉट गिवन इन योर आंसर, बट यू कैन रिमेम्बर, लाइक कभी भी आप एग्जाम्पल से याद करोगे ना, लाइक डिजीज कंडीशन से, तो हमेशा वो आपको कंडीशन भी याद रहेगी. ठीक है. सो मेक इट अ पॉइंट, हमेशा एक एग्जाम्पल से याद करो, एंड इट विल क्रिएट वेरी गुड इंप्रेशन इफ यू विल गिव द लाइक द ये मेडिकल, एनी मेडिकल सिस्टमिक डिजीज. ओके, तो अगर दोगे तो फिर आपको क्या होगा कि टीचर्स को भी लगेगा कि हाँ इसको मैटर समझ में आया है. तो यूजुअली क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रैक्नाइन पॉइजनिंग में क्या होता है, कंटिन्यूस और कन्वल्सिव एक्टिविटी होती है, थोड़ा सा भी स्टिमुलेशन देने से, क्योंकि इनिबिटरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस कन्वल्सिव एक्टिविटी होता है अगर थोड़ा सा भी स्टिमुलेशन देते हैं. और पार्किंसोनिज्म में क्या होता है कि इनहिबिटरी सिस्टम इंपेयर हो जाता है जिससे कि पेशेंट को रिजिडिटी होती है. ठीक है. तो ये दो कंडीशन है जिसको कि आप याद कर सकते हो. ठीक है. ये समझ में आ गया. ये क्वेश्चन था. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन this question. Which phenomena does the diagram depict, which I told you, recurrent inhibition or negative feedback inhibition. ये आप नोट कर लो, ये पढ़ लेना.
आज ही पढ़ लेना, क्योंकि अब आज मैंने समझाया तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू द इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड रेनशॉ सेल। एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, फॉर एग्जांपल पॉइजनिंग में या पार्किंसोनिज्म में, ठीक है। तो जो ओवर स्टिमुलेशन किसी का नहीं होना चाहिए, किसी का जितना जिससे डिजायर्ड वॉलंटरी एक्टिविटी चाहिए होती है वो नहीं होना चाहिए, मतलब वो इनहिबिट होना चाहिए जिससे नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। सो दिस इज द आंसर। I'll give you 1 minute. If you want, you can note down so that you can have the precise answer. And for the next answer, this. You can put up your questions at the end if you don't understand anything, but um, better to ask questions in the end if you're not able to understand this. Okay, so I am moving on to next question. अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है या फिर लगता है कि बाद में कुछ स्लाइड रिपीट करनी है, so I can repeat that. Okay, so first cover all the PBLs. So this is the next question. This is the diagram. What is this diagram depict? This is postsynaptic transmission, right? Okay, this is synaptic transmission. The diagram shows two presynaptic neurons and three post. These are the A and B are the obviously presynaptic neurons, and C, D, and E. These are the postsynaptic neurons. So what is your question? Your question is, with the help of the above diagram, explain the phenomena of facilitation and occlusion. So in which topic it comes? Just please note down, you already studied. This is in the properties of synaptic transmission. So what are the properties of synaptic transmission? You should be thorough with this. This is very, very important topic. So the properties are, first is the one-way conduction, second is the synaptic delay, third is the summation. Everything is given in the book. Summation property of the synapse. Okay. Fourth is the convergence and divergence. Fifth is the occlusion. Sixth is the subliminal fringe effect. And seven is the facilitation. Eight is the synaptic fatigue. Nine is the synaptic plasticity and learning. 10th is the reverberation. 11th is the reciprocal inhibition. 12th is after discharge. And 13 is effect of acidosis and hypoxia. So when you study this topic, you will come to know what is occlusion and what is facilitation. So first is facilitation. What is facilitation? Okay. So better if I'll give you this figure. Okay. So the presynaptic neuron A influences two, obviously the one is influencing the two post. Okay, just yeah, this one. Okay, so so the presynaptic neuron A, okay, this influences two postsynaptic neurons, which is one C and D. Okay, similarly, the presynaptic neuron B will influence the two postsynaptic neurons, that is D and E. Okay, so the phenomena of facilitation, how will we explain the phenomena of facilitation and occlusion in the same thing? So first we'll explain the phenomena of facilitation. Okay, so let me go to the other slide. Okay, so let the strength of stimulation be as shown below. This is the 6, 6, 8. This is the strength of stimulation. Okay, so the numbers on the presynaptic neurons indicate their strength of their potential. Okay, this one.
प्री वाला. And the number on the postsynaptic neurons will indicate the strength required to stimulate it. मतलब अगर इतनी strength होगी तभी stimulate होता है, otherwise नहीं stimulate होता है. ठीक है. तो what is the meaning of facilitation? तो facilitation अगर हम मान लो सिर्फ ए को stimulate करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ ये किसको स्टिमुलेट कर पाएगा? सी को, क्योंकि इसमें इसका कितना है? 6 है, और इसकी कितनी इंटेंसिटी चाहिए स्टिमुलेट करने के लिए? 6. तो और ये क्या है? 12 है. तो अगर हम सिर्फ 6 को करेंगे तो ये सिर्फ 6 को सी को कर पाएगा, ठीक है, डी को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ कितना चाहिए? 12 चाहिए स्टिमुलेट होने के लिए. सिमिलरली अगर हम सिर्फ बी को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या स्टिमुलेट होगा? सिर्फ ई स्टिमुलेट होगा, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ 6 है, क्योंकि अगर हम 8 दे रहे हैं तो सिर्फ अगर इसमें 6 चाहिए तो सिर्फ ई स्टिमुलेट होगा. बट अगर हम दोनों को एक साथ देंगे, फॉर एग्जांपल ए को भी स्टिमुलेट करेंगे और बी को स्टिमुलेट, दोनों को साथ में स्टिमुलेट करेंगे, तो क्या होगा? सी और डी तो स्टिमुलेट हो गई, साथ के साथ ये डी भी स्टिमुलेट होगा, क्योंकि इसको 8 मिल रहा है प्लस 4 कितना हो गया? 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14. और इसको सिर्फ चाहिए कितना? 12 चाहिए, ठीक है. तो 14 अगर हम करंट देंगे तो हमें कितना? 12 स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है. सो दिस मीन्स that thus the stimulation of D is facilitated by the simultaneous stimulation of A and B. This is called the facilitation. Understood? So when the presynaptic axon is stimulated with several consecutive individual stimuli, each stimulus may evoke the larger postsynaptic potential than evoked by the previous stimulation. This is called as facilitation. Got it? अगर हम इंडिविजुअली करेंगे तो नहीं होगा 12 डी स्टिमुलेट, पर अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट करेंगे तो डी स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है. इसको बोलते हैं फैसिलिटेशन. नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड द व्हाट इज occlusion. This is the same thing. Occlusion, ठीक है. ओके, तो इसमें क्या करना है हमें? जैसे पहले एग्जाम्पल दिया था वैसे ही हम इसमें भी एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब देखो इसमें क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ ए अलोन स्टिमुलेट टू पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है. अगर हम इसको करेंगे, इसको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए? 6. इसको कितनी चाहिए? 7. तो हम इसमें 10 दे रहे तो ऑब्वियसली दोनों आराम से स्टिमुलेट हो जाएगा, राइट. अगर हम सिर्फ बी को स्टिमुलेट करते हैं तो भी दोनों पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, डी एंड ई, ठीक है. तो अगर हम सिर्फ ए को करते हैं तो हमें 2 होते हैं, ठीक है, और हम अगर सिर्फ बी को करते हैं दो तो 2 होते हैं, मतलब ए और बी को करते हैं तो हमारे 4 न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है. बट अगर हम ए और बी को अगर साइमल्टेनियसली करते हैं तो कितने होंगे? सिर्फ 3 होंगे, सी डी और ई. गॉट इट? मतलब अगर हम सिर्फ ए को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी सी और डी दोनों स्टिमुलेट हो जाएगा. अगर हम बी को करते हैं तो हमारा डी और ई दोनों अगर अलग अलग टाइम पे करते हैं, ठीक है, जैसे पहले मान लो कि अभी ए को स्टिमुलेट किया, फिर उसके बाद 1 मिनट बाद हमने बी को किया, तो हमारे कितने न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो गए? 4, टोटल 4, ठीक है. बट अगर हमने ए और बी को साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट किया तो हमारे टोटल कितने? तब भी कितने मिलेंगे? 3, बिकॉज डी इज कॉमन टू बोथ, ठीक है. तो हमारे 3 इंटरन्यूरॉन्स, 3 पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगे वो स्टिमुलेट होंगे. सो दिस इज कॉल्ड ऑक्लूजन. ओके, ये है ऑक्लूजन. आई थिंक समझ में आ गया होगा. तो ऐसे एग्जाम्पल से समझना है, इसको फिर से पढ़ना, आप एग्जाम्पल से समझना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. Okay, so you can note down this, then we'll switch on to next. मैं पहले वाला भी कर दे रही हूँ in case you guys missed it. ये वाला था जो फैसिलिटेशन का एग्जाम्पल था.
Okay, so let's move on to next question. Fine. What is this? This is cerebral cortex, right? So this is the lateral view of the cerebral cortex. This is anterior, this is posterior. Okay. So what is the question? Which of these areas is responsible for elaboration of somatic sensory perception? What is the area called? And name the Brodmann's area corresponding to it. Okay. So what is the area responsible for the somatic sensory perception? See, ए की मार्किंग के पहले कितने हैं कि क्या है सारे? ये मोटर एरिया है, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद आता है जो बी वाला एरिया है, ये सारा सेंसरी एरिया होता है, ये आपको पता होगा। और अगर हम और यहाँ पे नीचे आते तो क्या होता है? विजुअल एसोसिएशन एरिया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? बीच में के आसपास ये पे स्पीच का एरिया होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मोटर स्पीच होता है कहीं तो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे जो होता है गस्ट्रेटरी एरिया होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो हमें पूछा है सेंसरी एरिया कौन सा होता है, ठीक है। सोमैटिक सेंसरी परसेप्शन किससे होता है? तो वो होता है बी से, ठीक है। बी को क्या बोलते हैं? दिस एरिया एनाटोमिकली प्रेजेंट द पोस्टीरियर पैराइटल लोब्यूल is known as sensory association area. Please remember this word, sensory association area. Okay. So association areas of the brain are most specialized part of the neocortex. So the primary sensory area are the first destination point for the sensation. This is the primary sensory area. This is the first destination point for the sensation. Okay. Information from there is conveyed to the association area where higher analysis of information occurs. For example, size for size, human beings have the largest association area because they are able to analyze the information. Okay, so you have to remember this area B, which is marked, is known as the sensory association area. This is the most specialized part of the neurocortex. So the primary sensory areas are the first destination point for sensation. And why? Because information from here is conveyed to the association areas where the higher analysis of information occurs. Okay. Now, what was the second question? इस एरिया को बोलते क्या है? I already told you, सेंसरी एसोसिएशन एरिया इसको बोलते हैं बी को। और इसका ब्रॉडमैन्स एरिया में क्या कौन सा नेम होता है? नेम द ब्रॉडमैन्स एरिया। तो ये एरिया होते हैं 5 एंड 7, ठीक है। फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू। आप पूछो कि ए क्या है, तो ए होता है प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया। ओके। सी क्या है? सी इज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स विच इज द which is in the pre, ये this is central gyrus, right? तो इसके पहले तो मतलब this is pre central gyrus and this is area 4. Okay, and what is D? D is the premotor area. Okay, ये प्राइमरी मोटर है, प्राइमरी के पहले क्या होगा? प्री, तो प्री मोटर एरिया है। and this is Brodmann's area 6. so 6 this is 6, this is 4, and this is 5 and 7. Got it? Okay. And this is, what is A? This is 3, 2 and 1. This is A is 3, 2 and 1. Okay. So I'll repeat. This is premotor area, which is 6. D. C is primary motor cortex, which is precentral gyrus, which is in the precentral gyrus. This is Brodmann's area of A. A is the Brodmann's area 3, 2 and 1. B is the sensory association area, which is Brodmann's area 5 and 7. Okay. So for this question, you have to remember this is the Brodmann's area 5 and 7. This is called a sensory association area, and this is the most specialized part of the neurocortex, and this is the first destination point for the sensation. Okay. So this you should remember. This is very easy. These are the basic things. Okay, so this was the question and
This is the answer. So please note down if you want. So this is the next answer. And after note, this is just for your information. This was not asked, but this is just for your information. Okay. Should we move on the next question? Okay. What is this? What is this diagram? This is a stretch reflex. Very easy. Or this is also called as myotatic reflex. So please remember, this is also called as myotatic reflex, and this is also called as stretch reflex. Okay. So what are the questions? Name the structure marked A. Which of the labeled structure adjusts the sensitivity of the response of the stretch reflex? Name it. Identify the structure labeled D. Which structure is known as final common pathway, and why? Okay, so we'll do one by one. So name the structure marked A. What is this? This is very easy. This is muscle spindle. Okay, obviously this you can see muscle. So A is muscle spindle. This is the receptor organ for the stretch reflex. This is the receptor for the, यहीं से तो stimulation होगा, तो this is the receptor for the stretch reflex. As a sensory receptor, this is sensory receptor. What does this do? This detects the rate and degree of the muscle stretch. Okay, this is muscle spindle. This is the receptor organ for the stretch reflex, and this detects the rate and degree of the muscle stretch. Okay. So the next, this was first question. Second, which of the labeled structure adjusts the sensitivity of the response of stretch reflex? Sensitivity कौन करता है? Adjust? ये B करता है. What is that? B is the motor innervation to मसल स्पिंडल. यहाँ से गया, यहाँ से ये मोटर इनर्वेशन है. ठीक है. और ये क्या होते हैं? गामा मोटर न्यूरॉन्स. दीज आर द गामा मोटर न्यूरॉन्स. गॉट इट? These are the gamma motor neurons. So changes in the gamma motor neurons to the spindle, muscle spindle changes the later, that is the muscle spindle sensitivity to stretch, and thus change the response of the stretch. अगर ज़्यादा इसमें ज़्यादा discharge हो, ज़्यादा changes होंगे तो वो कौन डिटेक्ट करेगा? गामा मोटर न्यूरॉन्स. उसके हिसाब से वो, मतलब वो स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव होता है, और जितना स्ट्रेच होगा उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स देगा. ठीक है. So gamma motor neuron is responsible for that. So the gamma motor neuron cause the striated poles of the interfusal fibers of the muscle spindle to shorten, along with the shortening of the, ये interfusal fibers shorten होता है along with the shortening of the extrafusal fibers. These are the extrafusal fibers during contraction. So क्या होता है? As a result, the contraction of the striated polar regions of the interfusal fibers, the central receptor region of the interfusal fibers remain stretched during the muscle contraction. और क्या होता है? अनलोडिंग नहीं होता है. इस तरह से गामा मोटर न्यूरॉन, this adjusts the sensitivity of the muscle spindle, so it will respond appropriately during the muscle contraction as well. इसमें आप दो पढ़ोगे, एक तो होता है डायनामिक
और दूसरा होता है स्टैटिक। तो जो गामा मोटर न्यूरॉन होते हैं वो दोनों तरीके के स्ट्रेस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं, डायनेमिक को भी और स्टैटिक को भी। So just remember this, the gamma motor neuron is responsible for adjusting the sensitivity of the muscle spindle so that it will respond appropriately during the muscle contraction. Got it? Okay. So the third question is identify the structure labeled D. What is D? This is the dorsal root ganglion. ये तो आपको पता ही होगा. This is dorsal root ganglion. Okay. And what is the structure C? What is this? Sorry. Which structure is known as final common pathway and why? तो स्ट्रक्चर सी जो होता है वो फाइनल कॉमन पाथवे होता है और इसको क्यों बोलते हैं? ठीक है, I'll explain you. This is what is these are the gamma motor neurons and C is the alpha motor neuron. So alpha motor neuron going to the extrafusal. This is ये जो B जो था वो कहाँ जा रहा था? इंट्राफ्यूजल फाइबर्स पे जा रहा था और हमारा C कहाँ जा रहा है? एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स पे हो रहा है. So whatever be the mechanism, like whether by the stretch of gamma motor neuron or by the higher center, जो भी mechanism होगा, in order to reach the extrafusal fibers, the innervation has to be finally conveyed through the alpha motor neuron. या तो यहाँ पे या तो गामा मोटर न्यूरॉन से इसका स्ट्रेच होता है या तो हायर सेंटर से, पर एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स तक रीच करने के लिए फाइनली जो इनर्वेशन है वो हमेशा अल्फा मोटर न्यूरॉन से ही जाएगा. ठीक है, तो इसलिए अल्फा मतलब कहीं से भी आए, अगर दिल्ली हमें आना है तो या तो गाजियाबाद से आए या तो नोएडा से कहीं पे, बट एक जो कॉमन एरिया है दिल्ली का एंट्रेंस वहां से पास करना ही पड़ेगा. तो ऐसे ही है कि ये अल्फा जहां या तो यहाँ से आए या तो फिर ऊपर हायर सेंटर से, हमेशा एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स पे जाने के लिए हमेशा हमारा ये सी को दैट इज अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा. ठीक है, फाइनल कन्वे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फाइनल कॉमन पाथवे. ठीक है, so C is alpha motor neuron and this is known as common final pathway. So this is the answer, you can note down. Okay. So we'll move on the next question 5. So this is also what stretch reflex. Okay. So the figure shows two types of fibers of the receptor organ for the stretch reflex. This one and this one. Okay. So first question is, which of the labeled structures is responsible for monitoring the rate of change of length of the skeletal muscle? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर स्केलेटल मसल की लेंथ कौन चेंज करता है उसका रेट. एंड सेकेंड, स्ट्रक्चर डी हैज बीन शोन इनोवेटिंग द स्ट्रक्चर ए. एक सेकेंड,
A structure D has been shown innervating the structure A, although not shown in the diagram. What are the endings of the structure D on A known as? ये पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर डी है, ठीक है, इसको कौन इनोवेट कर रहा है? ए। जो ये ए है इसको कौन इनोवेट कर रहा है? सॉरी, डी। ठीक है, ऑल्दो डायग्राम में शो नहीं किया है, बट मैं डायग्राम से समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो इसमें ये पूछ रहा है कि ऑल्दो इसमें दिखाया नहीं है, पर जो एंडिंग्स है वो ए का, वो कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो इनोवेट करते, मतलब उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ मसल है, ये क्या होता है? ए। दिस इज व्हाट इज ए? This is nuclear bag of the intrafusal fibers. So there are two types of fibers, intrafusal and extrafusal fibers. There are two types of intrafusal fibers. One is the nuclear bag fibers and the second is the nuclear chain fibers. Okay, what is the difference? See, the nuclear bag fibers, each spindle contains about 2 to 5 nuclear bag fibers, which are about 30 micrometer in diameter and 7 mm in length. So in these fibers, many nuclei are congregated into the expanded bag in the central portion. इसलिए उसको बोलते हैं, मतलब कि एक छोटे से पोटली में तुमने बहुत सारे कुछ भी लाइक गोलियां डाल दी, किसी भी चीज की गोलियां डाल दी, वो होता है न्यूक्लियर बैग। मतलब एक छोटे से बैग में बहुत सारी चीजें गोल गोल भरती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर्स। what is nuclear chain fibers? These are the nuclear chain fibers. So what is nuclear chain fibers? ये लेंथ, मतलब ये 15 माइक्रोमीटर डायमीटर, मतलब इससे छोटा डायमीटर होता है। इसका क्या डायमीटर होता है? 30 होता है, और इसका क्या होता है? 15 होता है। ठीक है, ये 7 mm होता है, 7 mm, और ये 4 mm होता है लेंथ में। सो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड इन द सिंगल फाइल इन द सेंट्रल पार्ट इन द फॉर्म ऑफ चेन है, इसलिए इसको बोलते हैं, मतलब ये जो न्यूक्लियाई है ये ऐसे करके चेन में रहती है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे एक ऐसा लग रहा है बैक में भर दिया है, और यहाँ पे बी में एक चेन में रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि एक टिपिकल, हर एक टिपिकल स्पिंडल में 6 to 10 न्यूक्लियर चेन होता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था ये। तो ये जो ए है ये क्या है, अब आपको समझ में आ गया? ये दोनों है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। क्लास खत्म कब होगी? सो ए में क्या, ए वो ए इज व्हाट? न्यूक्लियर बैग टाइप, और बी इज व्हाट? न्यूक्लियर चेन टाइप। ठीक है, चेन जैसा है और ये बैग जैसा, जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई भरी हुई हैं। ठीक है, ये दो टाइप ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। और जो ये जो डी की जो एंडिंग्स है, जहां पे खत्म होता है, उसको बोलते हैं प्लेट एंडिंग्स। प्लेट एंडिंग्स। ओके, so what is the explanation? The muscle spindle is the receptor organ of the stretch reflex, आपको पता है। It is made of the fibers known as intrafusal fibers. There are two types of fibers, intrafusal fibers, that is the nuclear bag channels, and the nuclear chain channels, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि which is not relevant to this question, but I have put in the answer, so just go through it. This is the thing, but एक बार पहले आप ये नोट कर लो, which is most important thing. ए जो होता है वो न्यूक्लियर बैग होता है, टाइप ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, और जो बी है वो प्लेट एंडिंग्स है, जहां पे वो इनोवेशन एंड हो रहा है। So you can see this, and then you can note down this, but this is not very relevant. So these are the characteristic feature of the nuclear bag and the nuclear chain, the type of efferents and efferents and everything. So you can note down the innervation of the muscle spindle, afferent, efferent किससे बनता है, टाइप क्या होते हैं, उसके एंडिंग्स को क्या बोलते हैं, उसकी साइड क्या होती है। ठीक है, so you should know this, but this is not very relevant, but you should know the difference between the nuclear bag and the nuclear chain.
Okay, so let's move on to another question. You can also note down this. This is given in the book. So the PBL 6 is, the diagram shows one half of the section of the, this is what? Section of the spinal cord, one half. Okay. So the first question is, what does the above diagram depict? Second, with respect to the above diagram, where is the gate for modifying the sensation of pain located? And name the structure. जो sensation of pain के लिए जो gate होता है, वो कौन सा structure होता है जिसको हम gate बोलते हैं, और उस structure का नाम क्या है, ये हमने पूछा है. मतलब इसी में से होगा, किसी में से एक होगा, पर कौन सा होता है. So this is the thing. Okay. So what this is called? This is called Rexed lamina. Rexed lamina. R-E-X-E-D. Rexed lamina. Okay. जो ये इतने सारे लैमिना में डिवाइडेड है स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं रीक्स्ड लैमिना. तो जो लैमिना 1 होता है, दैट करस्पॉन्ड्स टू द पोस्टेरो मार्जिनल न्यूक्लियस. सेकेंड इज नोन एज सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा रोलैंडो. थर्ड इज द nucleus propius. Okay, then third and fourth is the nucleus propius. Fifth is the neck of the dorsal gray column. Sixth corresponds to the dorsal nucleus in the base of the dorsal gray column. Then seven is the lateral horn. Then eight and ninth are the group of nuclei of the anterior horn, and this tenth is the then 10 surrounds the central canal, that is the gray commissure and the substantia gelatinosa centralis. ठीक है, तो ये है. ये आपको याद करना है. इफ यू कैन रिमेम्बर दैट्स वेरी गुड, कि ये सारे लेमिना होता है, बट इसको क्या बोलते हैं, रीस्ड लैमिना बोलते हैं. दिस वर्ड यू शुड रिमेम्बर. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने पूछा है कि वेयर इज द गेट फॉर मॉडिफाइंग द सेंसेशन ऑफ द पेन. So that gate is lamina 2, that is substantia gelatinosa rolando. So please remember this. What is that gate? So this is the gate. The gate is in the 2. So as per the, what is gate control theory? Okay. So the gate control theory, according to the, as per the gate control theory, the modulation of pain occurs at the level of dorsal horn of the spinal cord, which is the site for the synapse of the first and the second order pain sensory neurons. So the gate lies in the SGR lamina, that is the substantia gelatinosa rolando. I repeat again, you should know, you should remember this word, gate control of pain, or you can say gate control theory. So in the section of the spinal cord, at least you should know gate control theory. Please note down this. This is lamina 2, substantia gelatinosa rolando. So the modification of pain occurs at the level of dorsal horn of the spinal cord, which is the site of synapse of the first and the second order pain of the sensory neurons. So please remember this. So this is invented by the Broad-Reist, classified as the gray matter of the spinal cord into 10 lamina, which is called as Reist lamina. So these are the laminas. Yeah. And this is the next slide. Nani?
So please note down this also. The laminar flow is the substantia gelatinosa rolando and the gate control theory. So we move on the next question. Question number 7. What is this Panacean corpuscle? Okay, this is Panacean corpuscle. A, B, C, and D. What are these structures? So I'll tell you later. First, we'll move on the question. So the Okay, sorry for the Panacean corpuscles is the rapidly rapidly adapting or that is phasic receptor. So in this is the same question. Sorry for the bullet. In this content, what does the term adaptation mean in respect to response to a receptor? Second, which of the labeled structure above is responsible for the adaptation? And third, where is the site of generation of the action potential in the above diagram? Okay, so these are the questions. कि जो एडेप्टेशन होता है उसका क्या मतलब होता है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो एडेप्टेशन कराता है, और what is the site for the generation of the action potential. Okay, so this is Panacean corpuscle. So first you should understand what is Panacean corpuscles. So what is the structure of Panacean corpuscles? So what is this? This is the concentric lamina of the connective tissue. This which the green ring you are seeing, this is the concentric lamina of the connective tissue. What is B? B is the terminal portion of the nerve fiber. Okay. What is C? This is the first node of Renvier, and D is the second node of Renvier. Okay. This is the structure of Panacean corpuscles. So they have asked you the first question, what does the adaptation means? Okay. So when you study the properties of the receptors, there are many properties of the receptor. For example, specificity of the response, production of the receptor potential on stimulation. Third is the adaptation. So what is adaptation? When the receptor is continuously stimulated with the same strength of stimulus, the receptors respond at a very high impulse rate at first, but the frequency of action potential in its sensory nerve decreases progressively till finally many of them no longer respond at all in some of the receptors. So this is called adaptation. I'll go down slowly. क्या होता है कि जब बहुत सारे रिसेप्टर्स जो है कंटिन्यूसली स्टिमुलेट हो जाते हैं सेम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस से, तो क्या होता है कि पहले तो जो होता है इनिशियली क्या होता है कि बहुत दे रिस्पॉन्ड टू अ वेरी हाई इम्पल्स एट इम्पल्स, बहुत जल्दी इम्पल्स रेट से वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, बट जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बट जो उनकी एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी होती है वो सेंसरी नर्व में डिक्रीज होती जाती है प्रोग्रेसिवली। एक टाइम ऐसा आता है कि कोई एक भी जो रिसेप्टर्स होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब जिसको बोलते हैं एडेप्टेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हाई हिल पे जाते हैं, तो सबसे पहले जब आप पढ़ोगे कि प्रेशर एट द हाई एल्टीट्यूड, तो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारी सांस फूलती है, हाइपोक्सिया होता है, पर हम लेटर ऑन अडेप्ट हो जाते हैं,
जैसे कि हम पहले एक्सरसाइज करते हैं, हमें बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है, बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, हम जल्दी थक जाते हैं, बट धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते वो अडेप्ट हो जाते हैं हम, ठीक है। सो दैट इज अडेप्टेशन। द सेम थिंग होता है कि हम रिसेप्टर्स को जब कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करते हैं विद द सेम स्ट्रेंथ, तो क्या होता है, पहले तो बहुत पहले दिन आप बहुत अच्छे से बहुत जोर जोर से एक्सरसाइज कर लेते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे एक्सरसाइज करके आए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत लेट, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगता है, और फिर नेक्स्ट डे आप बिल्कुल खुश हो जाते हो कि यार आज तो मैं बिल्कुल एक्सरसाइज ही नहीं कर पाया, और फिर धीरे धीरे करके वो अडेप्टेशन हो जाता है। तो इसीलिए उसको क्या होता है कि वो अडेप्टेशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है कोई भी कुछ बहुत सारे, या हो सकता है कोई भी रिसेप्टर्स जो होते हैं उसको, उसमें एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता है, इसी को बोलते हैं adaptation. So the adaptation, when the receptor is continuously stimulated by a constant strength stimulus, the response of the receptor decreases. A receptor can ideally adapt rapidly, और वो हो सकता है rapidly adapt करे, या हो सकता है जैसे मान लो चोर को किसी उसमें बंद कर देते हैं, लॉक में बंद कर देते हैं, तो पहले तो उसको मारो तो उसको बहुत चोट लगती है, फिर वो अडेप्ट हो जाता है, उसको चोट ही नहीं लगती है, वो सेम थिंग है। पर तो वो कभी कभी किसी को रैपिडली अडेप्ट तुरंत अडेप्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत टाइम लगता है अडेप्ट होने में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। फिर सेकंड पूछा था कि ये कौन सा इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो करती है अडेप्टेशन के लिए, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर इज ए इज व्हाट, लैमेला। सो लैमेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड एडेप्टेशन ऑफ द पेनिसिलिन कॉर्पस्कल्स। It has been proved showing that the adaptation disappears when the, अगर आप ये लैमिना को अगर रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, एडेप्टेशन डिसअपियर हो जाएगा। सो एडेप्टेशन जो है ए इज रिस्पॉन्सिबल, लैमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडेप्टेशन। और थर्ड पूछा है कि साइट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो साइट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ये होता है सी, दिस इज द फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर। जो फर्स्ट ऑफ नोड ऑफ रेनवियर होता है वो लैमेला के अंदर होता है, और सेकंड जो होता है वो हमेशा लैमेला के बाहर होता है। डी जो है वो सेकंड नोड ऑफ रेनवियर है। तो जो लैमेला ये जो सॉरी नोड ऑफ रेनवियर ए, नोड ऑफ रेनवियर फर्स्ट है विच इज सी, ये जो है इनसाइड द लैमेला, ये दिस रेसेप्टर और द जनरेशन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट द नर्व एंडिंग स्ट्रक्चर बी। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बी क्या है, नर्व एंडिंग है। तो ये जो नोड सॉरी ये जो नोड ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द adaptation which is inside the lamella, and the second node of Renvier is always outside the lamella. So this is responsible for the generation of the action potential in the nerve terminal endings. That is B. B is the nerve terminal ending, A is the lamella, C is the first node of Renvier, and D is the second node of Renvier. So this was the question and this is the answer. So the PBLs are really very easy if you understand it. The PBLs are really very easy according to the CNS according to the CNS central nervous system के according these PBLs are very easy. So basically 2-3 things, cerebral cortex and the stretch reflex and the synapse and all you have to study in detail. तो वो आप पढ़ लोगे तो ये बहुत अच्छे से कर पाओगे. So let's move on the next question, that is 8. ये सबसे easy PBL है which all of you know also because ये सारे आपके इसमें sensory central nervous system examination में हुए हैं. So this is the easiest one. The diagram relates to one of the key procedures in the motor. कौन सा है ये? सभी को बताइए क्या कर रहा है ये? What is being primarily tested? Could the procedure have been carried out in a better way? What are the other significant feature in the diagram? So primary क्या टेस्ट कर रहा है? नी जर्क और नी रिफ्लेक्स. ऑब्वियसली नी पे हैमर मार रहा है, नी जर्क या नी रिफ्लेक्स दिख रहा है, ठीक है. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कुछ अलग और अच्छे तरीके से कर सकते हैं. हाँ, हमेशा हमें क्या करना है, ये देखो इसने जो है ये पॉइंटेड एंड ऑफ हैमर लिया है. सो इट इज एडवाइजेबल टू यूज ऑलवेज द broad end of the petal hammer
एक्सेप्ट फॉर द सिर्फ बाइसेप्स रिफ्लेक्स छोड़ के बाकी जहाँ पे पॉइंटेड एंड ऑफ हैमर यूज करते हैं, बाकी सब जगह आप ब्रॉड एंड यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड द जिसमें कि उसमें भी बाइसेप्स रिफ्लेक्स में क्या होता है कि हम एग्जामिनर जो होता है, क्योंकि वो पॉइंटेड होता है, तो एग्जामिनर जो होता है अपना हैंड रखता है बाइसेप्स टेंडन पे और फिर स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो एक वो है जिसमें आप ये नैरो एंड यूज करते हो, अदरवाइज यहाँ पे हम बाइसेप्स टेंडन में किसी भी और टेंडन में हम ये ब्रॉड एंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड जिंड्रैसिक्स मैन्युवर और दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो मतलब पेशेंट का एलिसिट नहीं हो रहा है, पेशेंट को कॉन्शियस होता है अरे यार अब क्या एक हथौड़े मारने वाला है या क्या करने वाला है, पेशेंट को बहुत एंशियस होता है, तो एंशियस हटाने के लिए क्या हम करते हैं, आइदर यू आस्क द पेशेंट टू क्लेंच हिज और हर टीथ, या तो क्लेंच टीथ करेगा या तो फिस्ट बनाएगा, और द हुकिंग द फिंगर्स ऑफ द टू हैंड्स एंड पुलिंग द हैंड्स अपार्ट, जैसे बोल रहे हैं कि जो फिंगर है एक दूसरे में डालना है हैंड में और इसको एक खींचना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज जिंड्रैसिक्स मैनुअर, और ही कैन क्लिंच हिज टीथ, मतलब ये सारी चीजें द होल थिंग इज कॉल्ड जिंड्रैसिक्स मैनुअल, और कुछ भी इसमें से करवा सकते हो। सो व्हाट ये क्यों कराते हैं, बिकॉज दिस इंक्रीजेस द गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज दैट हेल्प्स टू एलिसिट द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। सो इसको बोलते हैं रिइंफोर्स, जो मैंने आपको गामा मोटर न्यूरॉन का पहले ही बता दिया है। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द release of the gamma motor neuron, is responsible for elicitation of the stretch reflex, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, reinforcement. So this was the most simplest PBL. You can note down the question. And you know can note down the answer too. Next question. Okay, you can note down the gymnastics manual also. Okay, let's move on to another question. What is this? Name the term used in the sensory physiology to describe the above. In which part of the cerebral cortex is it presented? What is the arrangement of the whole body in its cortical representation? Give the physiological significance of this differential presentation of representation. So हर चीज का physiological significance पता होनी चाहिए, otherwise क्या ही फायदा पढ़ने का. So this is called sensory homunculus. इसको बोलते हैं sensory homunculus. There is a point for point sensory presentation of the whole body in the cerebral cortex. The whole body is mapped in the cerebral cortex. पूरी body ये cerebral cortex अंदर पूरी बॉडी मैप्ड होती है. आपकी बुक में देखा होगा कि वो उल्टा लटका रहता है या फिर कुछ ऐसे गोल से सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं जो अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पेशली आप पोस्ट सेंट्रल गायरस में देखोगे ना, जो उसका सेंसरी होम्युनकुलस है तो वो उसको प्रेजेंट करता है. आपकी बुक में मे बी द बेटर डायग्राम इज देयर, बट दिस इज आल्सो अ वेरी गुड डायग्राम. So this is called sensory homunculus. What is this? There is a point for point sensory presentation of whole body in the cerebral cortex. The whole body is mapped in the cerebral cortex.
And this is the term. Now, in which part of the cerebral cortex it is represented? Where? मैंने आपको already बता दिया, ये post central gyrus होता है, which is the primary sensory area and corresponds to the ब्रॉडमैन्स एरिया 3 to 1, जो कि आपने देखा होगा एक बार मैंने प्रॉब्लम आई थिंक 3 में बताया था, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डायग्राम बना था जिसमें ए था, ठीक है, जो ए था वो प्राइमरी सेंसरी एरिया था जिसको बोलते हैं ब्रॉडमैन्स एरिया 3, 1 and 2. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द होल बॉडी इन इट्स कॉर्टिकल प्रेजेंटेशन. अरेंजमेंट क्या होता है? द होल बॉडी इज प्रेजेंटेड अपसाइड डाउन, दैट इज हेड डाउन एंड फीट अप. जब आपकी बुक में देखोगे ना तो आपको ये चीज दिख जाएगी, इसमें ऐसे डायग्राम बनाया, बट आप जो आपकी बुक में दिखते हैं ना वो पूरा अगर हाफ कर दोगे तो वो वैसे ही दिखेगा कि वो उल्टा लेटा हुआ है. तो हेड डाउन होता है और फीट अप होती है इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस, जैसे जो सॉरी ए वाले एरिया में था, ठीक है. Give the physiological significance of this differential representation. So the area allotted to each body part in the post central gyrus, that is Brodmann's area 3, 1 and 2, is proportional to its degree of the sensory specialization and density of the receptors. मतलब जितना ये broad है, जितना ज्यादा, जैसे इसमें आप देख रहे होगे लिप्स बहुत ब्रॉड है, इसमें देख रहे होगे हैंड बहुत ब्रॉड है, तो ये जितना ब्रॉड होता जाता है उतना वो सेंसरी दैट इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ द सेंसरी स्पेशलाइजेशन और डेंसिटी ऑफ रिसेप्टर्स, मतलब वहां पे रिसेप्टर्स उतने ही ज्यादा होते हैं. मोर द डेंसिटी ऑफ रिसेप्टर्स इन द एरिया, मोर इज द एरिया allotted to the sensory, मतलब जिसके पास रिसेप्टर्स ज्यादा है उनको ये एरिया ज्यादा मिलता है. फॉर एग्जाम्पल देखो लिप्स, फेस कितना बड़ा सा बना रखा है. For example, the lips and the distal part of the limbs, especially the thumb and the fingers, have the much larger area of representation than the back and the proximal parts of the limbs, which have a very. आप देख रहे होगे जो आर्म्स है और जो फोर आर्म है ये इतना छोटा सा बना रखा है, पतला सा, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिसेप्टर्स कम होते हैं. और आप देख रहे होगे कि जो लिप्स है, ठीक है, और जो डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स जैसे ये फिंगर्स हैं, थंब है, वो इतना बड़ा सा बना रखा है क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, तो उसी तरीके से ये प्रेजेंट करता है, ठीक है. मतलब जितना ब्रॉड एरिया होगा उतना उसका सेंसरी स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगा और रिसेप्टर्स की डेंसिटी ज्यादा होगी. तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन बट यू शुड नो दिस. इसको बोलते हैं सेंसरी होम्युनकुलस. So the next question and the last question. Okay, you can note on this also.
Okay, so the last question, this is match the following. Okay, so you have to match these 6 things with this one. So first is the phantom limb. I think this will be quite tough to you, so I'll not ask you. Obviously I'm not asking you, but I'll tell you. So the phantom limb matches with the law of projection. So what is law of projection? समझ लो, इसमें क्या होता है, इन द लॉ ऑफ प्रोजेक्शन में क्या होता है, द स्टिमुलस लोकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एक्यूरेटली ड्यू टू पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी इन द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में क्या होता है कि वहां पे पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है बॉडी में, ठीक है, जो कि स्टिमुलस लोकेशन जहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फैंटम लिम्ब में, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल फैंटम लिम्ब में क्या होता है, मतलब आफ्टर एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब समटाइम्स द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इंटेंस पेन ऑफ द एब्सेंट, जहाँ पे लिम्ब एब्सेंट होती है, जहाँ पे लास्ट पार्ट होता है, एम्पुटेटेड लिम्ब होता है, फैंटम लिम्ब, वहां पे भी बहुत ज्यादा उसे पेन होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द सेंसेशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द डैमेज्ड नोसिसेप्टिव एंड प्रोप्रिसेप्टिव एफरेंस एट द स्टम्प ऑफ द एम्प्यूटेड लिम्ब। जो सेंसेशन होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? एम्प्यूटेड लिम्ब पे, ठीक है। तो उसके इरिटेशन से उसे पेन होता है, बट द सेंसेशंस इवोक्ड आर प्रोजेक्टेड टू द एरिया वेयर द रिसेप्टर्स यूज्ड टू बी लोकेटेड, ठीक है। सो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि पेशेंट का वहां पे लिम्ब नहीं होता है, फिर भी उसको बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो एम्प्यूटेड, जो स्टम्प ऑफ द एम्प्यूटेड लिम्ब है, वहां पे सेंसेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ डैमेज, जो वहां पे नोसिसेप्टिव और प्रोप्रिसेप्टिव एफरेंस का डैमेज हो गया है, उसकी वजह से उसको इरिटेशन होती है, ठीक है। सो दैट इज लॉ ऑफ प्रोजेक्शन इन द फैंटम लिम्ब। नाउ सेकेंड इज द लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। सो व्हाट इज लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन? आपने शायद पढ़ा होगा लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, इफ यू रिमेम्बर। को कभी भी ऐसा लगेगा सीएनएस में कि हाँ हमने बहुत सारा पढ़ लिया, फिर भी ये सब पूछो तो बहुत जल्दी याद नहीं आता है, ठीक है। तो जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़े थे ना, उसी में एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि उसमें होता है, जब हम ऑक्लूजन और फैसिलिटेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने 9 पॉइंट बताया था, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड लर्निंग। तो वो उसी का पार्ट होता है, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड लर्निंग का लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। तो इसमें क्या होता है, इसको ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैच करता है NMDR, दैट इज एन मिथाइल डी एस्पार्टेट ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन द पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन गेट्स मच प्रोलॉन्ग एंड लास्ट फॉर डेज, it is called long term potentiation. It occurs due to the increase in the intracellular calcium in the postsynaptic neuron rather than the presynaptic neuron. This phenomena commonly occurs in the हिप्पोकैम्पस। इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो पोस्ट टिटैनिक पोटेंशियल होता है, वो बहुत ज्यादा, जो मतलब किसी में अगर टिटैनिक प्रोड्यूस हो गया तो बहुत दिन तक रहता है और बहुत दिन तक लास्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है रेदर देन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, ठीक है। और ये कहाँ होता है? हिपोकैम्पस। अब ये NMDR से क्यों रिलेट करता है? because NMDR क्या? एन मिथाइल डी एस्पर्टेट ग्लूटामेट। ये एक्चुअली इसमें शायद आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पर जो NMDA होता है, दिस इज अ ग्लूटामेट रिसेप्टर एंड इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ग्लूटामेट, इसको क्या कहते हैं? ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज द कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, दे पर्टिकुलरली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लर्निंग एंड मेमोरी। तो जो हमारा पोस्ट टिटैनिक जो जो NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होता है पर्टिकुलरली, दे आर नेसेसरी कंपोनेंट इन द मेमोरी फॉर्मेशन एज मॉड्यूलेटेड बाय द लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। तो वहां पे क्या होता है, जो NMDA रिसेप्टर्स होता है, जो वहां पे पोस्ट सिनेप्टिक एरिया पे जो ये होता है NMDA रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग और मेमोरी। तो उसको याद रहता है जब ये वैसे तो लॉन्ग इंक्रीज इन द इंटरसेलुलर कैल्शियम से होता है, बट क्योंकि बहुत दिन तक लास्ट करता है तो उसके लिए मेमोरी भी होनी चाहिए, वे जो कि
NMDA रिसेप्टर्स होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? बेसिकली जो हर चीज न्यूरोट्रांसमीटर से होती है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ब्रेन में होता है। तो इसमें वो बेसिकली क्या होता है, लर्निंग और मेमोरी में पार्ट करता है। तो जब हम क्या होता है कि कभी कभी पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन बहुत दिन तक और बहुत लंबे समय तक लास्ट करता है। तो बहुत समय लंबे समय तक लास्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेमोरी और लर्निंग चाहिए। तो ये एनएमडीए रिसेप्टर्स जो होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग एंड मेमोरी। ये चीज है इन सिंपल वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज द मोटर न्यूरॉन डिजीज। आई थिंक ये इजी है, आपने सुना होगा ALS. What is ALS? That is amyotrophic lateral sclerosis. Okay, तो इसमें क्या होता है, this is AMS is also known as motor neuron disease. ALS is also known as motor neuron disease. These are the neurodegenerative neuromuscular disease that results in the progressive loss of the motor neurons that control the voluntary muscles. Okay, इसमें क्या होता है, this is, I repeat again, these are the neuromuscular disease that results in the progressive loss of the motor neurons. मोटर न्यूरॉन डिजीज है ना, तो इसमें मोटर न्यूरॉन्स का लॉस होता है। और मोटर न्यूरॉन्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, वॉलंटरी एंड मसल्स करने का। तो जब वॉलंटरी मसल्स का कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ मसल्स होंगी, मसल्स में ट्विचेस होंगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे वीकनेस बढ़ेगी और मसल की वेस्टिंग होती है। सो देयर कैन बी स्टिफनेस ऑफ द मसल, there can be muscle twitches, there can be gradual increasing weakness, and there can be muscle wasting. So motor neuron disease will be matched with the amyotrophic lateral sclerosis. Then referred pain. Referred pain ये आप सबको पता होगा, referred pain किस में होता है, dermatomal rule. What is dermatomal rule? When pain is referred, it is usually to a structure that developed from the same embryonic segment or dermatome as the structure in which the pain is originates. ठीक है, जिसमें पेन ओरिजिनेट होता है उससे जो सेम एम्ब्रियोनिक सेगमेंट में जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वहां पे पेन होता है। जैसे हम बोलते हैं कि मान लो हार्ट अटैक हो गया तो हमें शोल्डर में पेन होता है, लेफ्ट साइड में राइट, क्योंकि सेम डर्मेटोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे पेन होता है। दिस इज कॉल्ड रिफर्ड पेन और दिस इज ड्यू टू द same dermatomal supply because of from where that originates from the same embryonic segment or dermatome. Okay, so this referred pain is a dermatomal rule. Now next is the intensity of the stimulus and magnitude of sensation. So what is this law? This law is the law of Weber-Fechner law. What is Weber-Fechner law? The magnitude of sensation felt is directly proportional to the log of the intensity and intensity of stimulus. What does the Fechner? इसका आपने शायद वो पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, which I remember, K is S is equal to K log I plus C, जिसमें K और C कांस्टेंट होता है। तो ये होता है, तो उसका जो ये है फॉर्मूला है वो आप याद कर सकते हो जब आप ये पढ़ोगे स्नैप्स वगैरह, तो उसमें देखोगे। अदरवाइज इसमें क्या होता है, इन अ सिंगल वर्ड यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन फेल्ट is directly proportional to the log of the intensity of stimulus. So this is Weber-Fechner law. Romberg sign किससे मैच करता है, Stapes dorsalis. What is Stapes dorsalis? This is the disease caused by the syphilis. आप ये बहुत common disease है, in which there occurs a bilateral degeneration of the posterior nerve roots and posterior funiculi, especially the fasciculus gracilis. Basically क्या होता है इसमें कि posterior nerve root का bilateral degeneration हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सेंसरी अटैक्सिया, आपने सुना होगा सेंसरी अटैक्सिया, इन विच देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट्स। बहुत सारी चीजें होती है, बट वन ऑफ द साइन इज द रॉम्बर्ग साइन, जिसको बोलते हैं सेंसरी अटैक्सिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट इफ द इन दिस द पेशेंट वॉक्स ऑन अ ब्रॉड बेस with the legs apart, मतलब पैर खोल खोल के चलता है, and the eyes fixed on the ground for
करेक्टिंग द स्टेप्स, नीचे देखता रहता है कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। फिर टिपिकली द पेशेंट रेजेस द लेग्स एक्सेसिवली हाई एंड स्लोप्स द फीट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एकदम से उठाता और एकदम से रख देता है। ठीक है, और देखता है आगे और ब्रॉड गेट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रोम्बस एंड बेसिकली बेसिकली सेंसरी अटैक से होता है। इसमें क्या नाम है, टेप्स टॉर्सालिस में। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट अगर स्टैंड करता है विद द फीट, अगर आईज ओपन करता है तो वो ठीक रहता है, बट जैसे ही वो आईज को क्लोज करता है वो स्वे करता है या तो फॉल कर जाता है, जिस साइड रहता है टैक्सिया। ठीक है, तो याद रखना, ये जो टेप्स डॉर्सालिस होता है उसमें सेंसरी अटैक से होता है, जिससे कि रोम्बर्ग साइन पॉजिटिव होता है। आप वो सेरेब्रल क्या नाम है एग्जामिनेशन में पढ़ोगे रोम्बर्ग साइन, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें सेंसरी अटैक से होता है जिससे कि रोम्बर्ग साइन पॉजिटिव होता है। जब पेशेंट एकदम फिट क्लोज करके खड़ा रहेगा और आंख खुला रहेगा तब तक तो ठीक रहेगा, जैसे ही आइज क्लोज करता है तो ही लॉस्ट हिज बैलेंस और स्वेस और फॉल ऑन द साइड with eyes closed। ये था। So this was the last PBL and thank you so much। ये आप नोट कर लो, इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है बट एक्चुअली एक्सप्लेनेशन तो वैसे भी क्या ही पूछेंगे, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने एक एक दो दो लाइन आपको बता दी है इसकी, तो ये नोट डाउन कर लो। एंड इफ यू हैव एनी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप, अदरवाइज आप जाके पढ़ना। और ये क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ भी नहीं थे, आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे यू कैन आस्क क्वेश्चन। If you want me to repeat any slide, so you can tell me, I'll repeat the slide if you have not noted down. ओके, सो व्हेन द रेपुटेशन डिफरेंट, नहीं इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट स्ट्रेंथ स्टिमुलस देना होता है, तभी उसका जो रिस्पांस होता है वो रिसेप्टर का डिक्रीज होगा, वरना अगर अलग अलग आप स्ट्रेंथ दोगे तो फिर वो रिसेप्टर का जो रिस्पांस होगा वो डिक्रीज नहीं होगा। बट अगर सेम एक कांस्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ विद द सेम करंट दोगे तभी एडेप्टेशन होता है। ओके, दो एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो एक माउस को एक मर्की वाटर में डाल देते हो तो वो स्विम करेगा तब तक जब तक कि उसको एक हिडन प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाएगा जहां से वो क्लाइंब आउट कर सकता है। बट अगर सेम चीज वो रिपीट करोगे तो वो क्या करेगा, वो लोकेट कर लेगा कि हाँ हमें जे किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, मतलब कि कहाँ से हमें क्लाइंब करके ऊपर जाना है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन।
Okay, Tejas, ma'am, in question 2 was not the first explanation. Yeah, it's the same thing. या सबलिमिनल फ्रिंज वही सेम ही होता है. जब आप फैसिलिटेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें यही होता है कि जो सबलिमिनल फ्रिंज जो वो वाला जो एरिया होता है, इसमें एक सेकेंड, आई विल सेंड द डायग्राम टू शो इट, बट हाँ वो सेम ही होता है. जो आप बोल रहे हो ना वो सेम होता है. तो वो दैट इज इंक्लूडेड इन द फैसिलिटेशन ओनली, दैट इज द मैकेनिज्म. मैंने आपको मैकेनिज्म नहीं बताया था, मैंने आपको बस एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल करके बता दिया था. तो वो जो एरिया होता है, जो एक मिनट में स्लाइड खोलती हूँ तो फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये जो बोल रहे हो ना, ये फैसिलिटेशन. ओके, तो ये जो एरिया जो डी है ना, ये वाला जो एरिया है, दैट इज सबलिमिनल फ्रिंजेस ओनली. इसी को बोलते हैं सबलिमिनल फ्रिंज. सेम थिंग है. तो दैट इज इंक्लूडेड इन द मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेशन. और ये क्यों होता है? बिकॉज जब जैसे सक्सेडिंग स्टिमुलस देते हैं, वो क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से इंक्रीज होता जाता है. जैसे कि कैल्शियम चैनल ओपन रहता है व्हाट फॉर द प्रोलॉन्ग टाइम, और इसमें क्या होता है, मोर न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं प्री सिनेप्टिक पे बाई एक्सोसाइटोसिस. तो उसमें क्या होता है कि सबलिमिनल स्टिमुलस जो होता है, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से सबलिमिनल स्टिमुलस जो होता है, वो प्राइम करता है ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को. तो जब सो दैट अनदर सबलिमिनल स्टिमुलस कैन इवोक डिस्चार्ज फ्रॉम द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टिमुलस इज सपोज टू फैसिलिटेट द इफेक्ट ड्यू टू द prolonged exposure of the postsynaptic neuron to the neurotransmitter. So that is including the mechanism of this thing, facilitation. The same thing, subliminal fringe. So this is the discharge zone. See, E is the discharge zone, and D is the subliminal fringe. So the whole area is also the discharge zone, but the D is the subliminal fringe. So I just told you what is subliminal fringe, or facilitation does not mean increased transmission of impulse. Increased transmission या decreased transmission की यहाँ पे बात नहीं हो रही. यहाँ पे अगर हमारा दो स्टिमुलस है, अगर हम दो स्टिमुलस को देते हैं, ठीक है. आपको फैसिलिटेशन समझ में नहीं आया क्या? फैसिलिटेशन बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कि इसमें ये सेम जो मैंने स्लाइड खोली है, इसमें इसका स्ट्रेंथ जो प्री सिनेप्टिक पे वो स्ट्रेंथ बताता है पोटेंशियल का, और जो पोस्ट सिनेप्टिक पे जो मैंने 6 12 6 लिखा है, ये स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट देम. तो अगर हम ए को स्टिमुलेट करेंगे तो वो सिर्फ सी को स्टिमुलेट करेगा, अगर हम बी को स्टिमुलेट करेंगे तो वो सिर्फ ई को स्टिमुलेट करेगा. पर अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली इंक्रीज स्ट्रेंथ की हमें कुछ बात ही नहीं करनी है. हम सोच हमें बस ये है कि दो को एक साथ स्टिमुलेट करेंगे. तो हम अगर ए और बी को दोनों साथ में स्टिमुलेट करेंगे, तो जो है हमारा डी है वो भी स्टिमुलेट, क्योंकि डी को स्टिमुलेट करने के लिए हमें 12 चाहिए. ठीक है. हमें 12 ये 12th स्ट्रेंथ चाहिए. ठीक है. पर अगर हम ए और बी को साइमल्टेनियसली अलग अलग दोनों में से कोई भी नहीं कर पाएगा, और अगर हम दोनों को साथ में स्टिमुलेट करेंगे तो वो डी को भी स्टिमुलेट कर पाएगा. अदरवाइज हम अलग अलग करेंगे तो सिर्फ वो सी को या ई को ही कर पाएगा. ये है.
Soumya, you got it? Part C of question 1. Okay. Stimulate करेगा. Part C of question 1. Okay. Physiological significance of this phenomena. Physiological significance तो मैंने इतने अच्छे से बताया, आपको समझ में नहीं आया. Okay. पहले सबसे पहली बात कि आपको रेनशॉ सेल समझ में आ गया कि ये जो है अगर ये स्टिमुलेट होता है तो अगर इनहिबिट होता है तो सिर्फ इसको ही इनहिबिट नहीं करता है, इसको भी इनहिबिट करता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लो कि हम स्टैक्नाइन, फॉर एग्जांपल मैंने दो एग्जांपल दिया था. स्टैक्नाइन पॉइजनिंग, स्टैक्नाइन पॉइजनिंग में क्या होता है कि ये इनहिबिट हो जाता है. ठीक है. तो जब ये इनहिबिट हो जाता है तो इनहिबिशन इस पे नहीं रहता है, तो फिर इसका क्या होता है, रिपीटेटिव डिस्चार्ज होता है. रिपीटेटिव डिस्चार्ज से क्या होगा, कन्वर्जन होगा. क्योंकि हमें न्यूरॉन्स में हमें सीएनएस में हर टाइम रिपीटेटिव फायरिंग नहीं होनी चाहिए. सो देयर शुड बी समथिंग, दिस इज कॉल्ड द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी एंड सिस्टम. कि अगर हर समय जरूरी नहीं कि फैसिलिटेटरी इफेक्ट हो, कहीं कहीं हमें बॉडी में इनहिबिटरी इफेक्ट भी चाहिए होती है. तो दीज आर द एक्सटर्नल कंडीशन. जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग देते हैं तो इसमें क्या होता है, जो सी वाले इंटू न्यूरॉन्स होता है ये इनहिबिट हो जाता है. इनहिबिट हो जाता है तो ये इसको बी को इनहिबिट नहीं कर पाएगा. तो जो हम लगातार इसमें जब थोड़ा सा छोटा सा भी स्टिमुलस देंगे तो ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव इसका डिस्चार्ज होगा, जिससे कि आपको सीजर भी आ सकते हैं. बहुत ज्यादा रिपीटेटिव डिस्चार्ज होता है. सेम थिंग मैंने बताया था कि पार्किंसनिज्म डिजीज में जबकि अगर ये इनहिबिट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि इसको इनहिबिट करने के लिए कोई रहता नहीं है. अगर सी अगर ब्लॉक हो जाएगा तो बी को इनहिबिट करने के लिए कोई रहेगा नहीं, तो इसका रिपीटेटिव डिस्चार्ज होगा जिससे कि रिजिडिटी होगी. तो इसका एग्जाम्पल में जो था वो इसमें मतलब इसमें इतना ज्यादा नहीं बताया. इसमें आप पढ़ सकते हो कि firstly the desired lower motor neurons say B should be stimulated precisely and should not be over. जो B है ना वो एक एक लिमिट में एक्साइट होना चाहिए, वो ओवर स्टिमुलेट नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो क्योंकि मैंने बताया था कि ये इनहिबिट होता है तो नेबरिंग न्यूरॉन्स को भी इनहिबिट करता है. ठीक है. तो जो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन बी का होता है वो उसको हेल्प करता है अचीव करने में. सेकेंडली जो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं वो जो अदर लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं जो कि इन्वॉल्व नहीं होते हैं वॉलंटरी मूवमेंट के, वो स्टिमुलेट नहीं होनी चाहिए. तो इसीलिए जब सराउंडिंग इनहिबिट होंगे तभी तो वो इनहिबिट होंगे, अदरवाइज वो कैसे इनहिबिट होंगे. ठीक है. हर जिसका वॉलंटरी मूवमेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं रहता है, वो इनहिबिट होते हैं. तो ये जो रेंशो सेल है दैट हेल्प्स इन अचीविंग दैट. Kritika, we got it. They just you don't need to understand that. Just you need to match this. That will be asked to match that. That is not required at all for you. That is just to confuse you all.
मुलर्स डॉक्ट्रिन कुछ नहीं है, वो ये बोलता है कि माइंड हैज एक्सेस नॉट टू ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड बट ओनली टू आवर नर्व्स, ये बोलता है मुलर्स डॉक्ट्रिन विच okay. Then next is the internal capsule is a part of brain, you know that. And other than that, क्या पूछता है? Syringomyelia mylia. Syringomyelia क्या होता है? This is the development of fluid filled cyst within your spinal cord. इसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें एक cyst बन जाता है जिसमें फ्लूइड रहता है, उसको बोलते हैं सिरेंगोमाइलिया। तो वो क्या होता है, कभी भी बढ़ जाता है तो आपके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, जिससे कि पेन, वीकनेस, स्टिफनेस, लिम्ब में वीकनेस या फिर नर्व से रिलेटेड जो भी वीकनेस, पेन वो होते हैं, दैट इज सिरिंगोमाइलिया। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल तो पार्ट है ब्रेन का, वो किसी से मैच नहीं कर रहा है। एएमएस मैंने बता दिया, एनएमटीआर बता दिया, मुलर्स बता दिया, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, टेप्स, टॉर्सालिस, वेबर फ्रेशन ऑफ डर्मेटोल। ओके, everything is covered. Tejas, you got it? So I think this PBL will help you. This is very scoring, so please try to, I think all of you have noted down. So please go through it. It's very easy also, and please read the relevant theory also related to this. Okay. So I am ending the webinar. Thank you so much for your patience listening in the, especially in the afternoon and remaining at home, and be safe and happy. Thank you very much. If you have still have any question in your mind, just go through the PBLs and go through the CNS. Regarding PBL, if you have any question in mind, you can ask me through my personal, at my personal WhatsApp window. So it's time to end the seminar webinar. So I am ending the webinar. Thank you so much for your patience listening. Bye. Take care.